আমাদের ঘাট সেলাই কাজ করছে কেন না আমাদের গভর্নমেন্ট আমাদের সরকার ওদের ভিজনে নয় ওদের সোচে নয় কি আমাকে কি কাজ করতে হবে ওরা একটাই জানে কি 2,500 টাকা আমরা মহিনায় দেয় মাসে মাসে 2,500 টাকা দেয় আগে সেটাই সঞ্জীবনী বটে তো সেই জন্য আজকে আমরা একটা নতুন পলিটিক্স করবার জন্য আছে নতুন পলিটিক্স মানে জনতা জনার্দনের পলিটিক্স আম জনমানসের পলিটিক্স শিক্ষা স্বাস্থ্য সুবিধার পলিটিক্স ঝাড়খণ্ডীয়তের পলিটিক্স তো সেই জন্য আজকে আপনাও জানে সবাই জানে যে দুটা ক্যান্ডিডেট আছে একটা সোমেশ সোরেন আর একটা বাবুলাল সোরেন এই দুটা ক্যান্ডিডেট কে বটে একটা পূর্ব মুখ্যমন্ত্রীর বেটা আর একটা পূর্ব মন্ত্রীর ছেলে বটে একটা পূর্ব মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে একটা পূর্ব মন্ত্রীর ছেলে বটে তো ওদের ভিজন নাই ওর দরকারও নাই কি ভাই আমরা এই আমাদের জনতা আমাদের গ্রামীণ আমাদের গ্রামের লোক আমাদের মানুষ আমাদের ঝাড়খণ্ডের লোক ওদের কেন চিন্তা নাই সেই জন্য আজকে আমাদের স্থিতি পরিস্থিতি আছে তো আজকে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের স্থিতি আপনি সবাই জানেন আজকে এখানে মুখ্যমন্ত্রী বলে কি আমরা 2,500 টাকা মাসে দেয় ভাই 2,500 জন্য আমাদের ঝাড়খণ্ডের রাজ্য নির্মাণ আমাদের পূর্বজ এই রাজ্যের নির্মাণ 2,500 টাকার জন্য নাই করেছি এই রাজ্যের নির্মাণ আমরা এই জন্য করেছি কি আমাদের ছেলে চাকরি পাবে কেন আমাদের ছেলের পড়ালেখা হবে আমাদের ছেলের রোজগারের রাস্তা লেকিন আজকে কি হচ্ছে আজকে এই গভর্নমেন্টের জবাব দেয় নাই আজকে সবাই সিস্টেমে দুটা পরিবার 4টা পরিবারের কাছে গোটা সিস্টেম আছে যার কাছে পাওয়ার তার কাছে পলিটিক্স তার কাছে পয়সা আছে আর আম জনমানসের সুবিধা আজকে গণ আজকে মন চুপচাপ আছে আমাদের সেই জন্য আজ আপনিও জানে আমি একটা এমএলএ কিন্তু যখন আমরা বিধানসভার ডিসকাশন হয় যখন বিধানসভার সেশন চলে আমি যখন বিধানসভার ভিতরে প্রশ্ন করে যখন আমি গল্প করে যখন আমি মুদ্দার বাদ করে তখন আপনি দেখতে পারে কি একটা নাই দুটা মন্ত্রী দাঁড়ায় নিয়ে আমার সঙ্গে ডিসকাশন করে কাপে মন্ত্রীরা কি এই নতুন ছেলা নতুন পলিটিক্স খেলার এই নতুন পলিটিক্স করতে জন্য এসেছে সেই জন্য আজ ইউথের টাইম নজওয়ানের সময় বটে নজওয়ানের হাতে যদি আপনার পলিটিক্যাল পাওয়ার দিতে যায় তো নিশ্চয়ই বদলাও হবে আর বিশেষ এইটা পলিটিক্যাল কান্ট্রি এইটা ভোটের কান্ট্রি আমাদের ভোটে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আজকে तो आज आप सभी जानते हैं कि आज वोट का देश है आज हमारे राज्य को हमारे लोगों ने लिया कैसे है अपना लहू देकर लिया है आज निर्मलदा का रक्त नहीं बहता आप सभी जानते हैं कोल्हान की धरती का कण कण पूरे झारखंड का कण कण जानता है कि निर्मल का लहू बहा तब झारखंड राज्य मिला तो किस लिए क्या हम केवल लहू बहाने के लिए हैं कि जब इस राज्य को जरूरत पड़ेगी हम अपना खून बहा देंगे जब इस राज्य को जरूरत पड़ेगी हम अपना गर्दन कटा देंगे और राज कौन करेंगे मुख्यमंत्री और उनका परिवार चोम्पई चाचा और वादर परिवार मैंने जब जरूरत पड़ेगी तो झारखंड का जनमानस गर्दन कटाएगा और 2-3 परिवार अगर राज करेंगे तो चिंता का विषय है आज कहते हैं कि हमारा खजाना खाली है हेमंत सोरेन जी कहते हैं हमारा खजाना खाली है मैं गुरु जी का सम्मान करता हूँ पूरा राज्य उनका सम्मान करता है और शायद अगर गुरु जी अगर स्वर्ग तक ये बात पहुंच गई होगी तो वो भी हेमंत से सवाल पूछेंगे कि जिस गुरु जी ने हमेशा जनमानस के लिए संघर्ष किया उनके भोज के कार्यक्रम में 5,000 खस्सी काट दिया मुख्यमंत्री ने কোথায় বলি টাকাটা এইখানে টাকা আছে যদি ঝাড়খণ্ডে টাকা নাই তো কোথাও টাকাই নাই हमारे राज्य में अगर पैसा नहीं है खजाना नहीं तो कहाँ मिलेगा क्या नहीं हमारे राज्य में 75 से 80 प्रकार का मिनरल्स है कोयला है यूरेनियम है लोहा है कॉपर है बॉक्साइट है अभ्रक है ऐसे 75 से 80 प्रकार के मिनरल हमारे राज्य में है लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है ये किसी से नहीं छुपा है तो इसलिए आज सरकार को सबक देना होगा हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि एक सीट से कुछ होगा नहीं लेकिन एक सीट से उनमें डर होगा ये जनता का देश है आप जानते हैं
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ये जनता का देश है और जनता के देश में सबको जनता से डरना ही चाहिए। चाहे वो आईएएस आईपीएस रहे, चाहे वो मिनिस्टर रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, जनता से अगर वो गलत काम कर रहा है तो जनता से डरना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा होता है। आपने देखा हमारे ही पड़ोसी देश नेपाल में क्या हुआ, थर थर कांपे, मंत्री की नहीं कांपे, प्रधानमंत्री कांपे, मारने जो लगा नेपाल का नौजवान सब सड़क में आके। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, श्रीलंका में राष्ट्रपति को भागना पड़ा। लोकतांत्रिक देश मतलब जनता का डर सब में दिखना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि जनता का डर नेताओं में दिखता नहीं है। उनके तीखे सवालों से घबराना चाहिए कि जब हम गांव में जाएंगे दोबारा वोट मांगने के लिए, जनता क्या सवाल पूछेगी। लेकिन आज हमारी जनता भी कहीं ना कहीं सोई है, इसलिए आज नेता का बेटा को नेता चुन रही है। तो फिर काहे वोट? हमने इतिहास में पढ़ा है कि बाबर थे, बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा शाहजहां था, और ऐसा करते करते जहांगीर औरंगजेब होते हुए बहादुर शाह जफर तक आ गया। हमने ये भी पढ़ा है कि श्रीगुप्त था, फिर उसका नाती की पोता चंद्रगुप्त आया, फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर स्कंदगुप्त आया। ऐसे उसका परिवार, यानी उस समय राजा के हाथ में निर्णय था कि राजा कौन बनेगा। लेकिन आज हमारे हाथ में निर्णय है कि हम एमएलए किसको बनाएंगे। हम मानते हैं कि भाई हम बाबर का बेटा हुमायूं राजा बना, बादशाह बना, हम रोक नहीं सकते थे। चंद्रगुप्त का बेटा राजा बना, ये हम रोक नहीं सकते थे। वो काबिल था या नहीं था, वो हमारे बस में नहीं था। लेकिन ये लोकतांत्रिक भारत है, ये हमारे बस में है कि एमएलए कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, ये हमारे बस में है। और आज बदलाव करना होगा। आज इस राज्य को गरीब बनाया जा रहा है, इस राज्य के खजानों को लूटा जा रहा है, इस राज्य के संसाधन को लूटा जा रहा है। आज पुलिस का मतलब क्या था आप भी जानते हैं। पुलिस का, चलो लोग सोचता है कि चलो पुलिस रात को कम से कम पहरादारी करेगा, चोरी नहीं होगा, डकैती नहीं होगा, जनता को कोई परेशान नहीं करेगा। आप सड़क में चले जाइए, आज पुलिस का काम रह गया है बालू गाड़ी से तस्करी लेना। आज बड़े बालू गाड़ी से, कोयला गाड़ी से जो अवैध काम हो रहा है उससे चंदा लेना, उससे काम बचा। क्यों? सरकार हमारी कमजोर है, हमारी सरकार की मनोवृत्ति नहीं है, हमारी सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। चले यही घर चला के सड़क में चले जाइए, ये जो आपके घाट चला मूसाबंदी होकर जा रहा है, देखिए रात को बड़ा बड़ा बालू गाड़ी निकलता है और अब पुलिस के आदमी लोग टॉर्च दिखा के पैसा ले बोले जाओ रास्ता खाली है। ये काम इनका बचा है। क्योंकि पुराना पॉलिटिक्स चल रहा है, नया पॉलिटिक्स की सरकार है। नए लड़कों को राजनीति में आने की जरूरत है, नई बहनों को राजनीति में आने की जरूरत है। आज कहते हैं झारखंड में सब कुछ है, जानबूझकर झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। आज शिक्षा, आज हमारी शिक्षा की व्यवस्था क्या है आप सभी जानते हैं। आज हमारे जो भाई बहन है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, उनका छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, उनका स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। और स्वास्थ्य मेडिकल का क्या है स्थिति है, आप देखा आपने चाईबासा में 5 को छोटा छोटा बच्चा को जरूरत था दूसरा खून का, चढ़ा दिया चाईबी वाला खून। पढ़े होंगे आप लोग पेपर में, उसको जरूरत था दूसरा खून का और उसको चढ़ा दिया चाईबी वाला माने खून। ये है हमारा हेल्थ फैसिलिटी राज्य का। इसलिए आज जनता को उत्तर देना होगा कि भाई ये जनता का देश है, जनता से आपको डरना होगा। कोई रहे, बीडीओ रहे, सीओ रहे, दरोगा रहे, वीडियो अपना, आप कभी भी किसी वीडियो के पास जाएंगे तो उसका कमरा में कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? JAS, उसके नाम के नीचे JAS लिखा होता है, यानी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सर्विस माने क्या होता है? सेवा। सेवा करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं, इलाज करने वाले को डॉक्टर कहते हैं, खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं, नाचने वाले को डांसर कहते हैं, सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। मतलब वीडियो कौन है? हमारा सेवक है। सीओ कौन है? हमारा सेवक है। जनता के देश में जनता से सबको डर के रहना चाहिए, लेकिन आज जनता डरी हुई है कि हम कुछ बोलेंगे केस हो जाएगा, हम कुछ बोलेंगे ये हो जाएगा। इसलिए जनता का देश लगता ही नहीं कि जनता का देश है, खाली लगता है कि नारों में और भाषण में जनता का देश है, हकीकत में लगता ही नहीं है जनता का देश है। तो ऐसे में जनता की जिम्मेदारी है कि इस देश को जनता का देश बनाया जाए और अपने मतदान से नए नेताओं का चयन किया जाए जो आभास कराएंगे कि ये जनता का देश है। आज देखिए एक जयराम कुमार महतो के आने से क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे भी अब सवाल करने लगे हैं, लड़कियां भी सवाल करने लगी है, क्वेश्चन करने लगे हैं, सिस्टम से टकराने लगे हैं, आंख से आंख दिखाकर बात करने लगे हैं।
इसलिए ये जनता का देश कैसे हो, ये हमारी जिम्मेवारी है। ये अफसरशाही का देश नहीं है, ये नेताओं का देश नहीं है, ये जनता का देश है। जनता नेता चुनती है और जो अफसर आते हैं वो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं। लेकिन आज हमारी सरकार क्या कर रही है, आपसे छुपा नहीं है। आज वो क्या कर रही है, इस राज का पैसा कहां खर्च हो रहा है। अरे हम तो आश्चर्यचकित हो गए। आपके गालूडी में मुख्यमंत्री की भाभी का रिसोर्ट में पूंजी लगा है। कहा कि वो चुनाव लड़ती है दुमका उधर से और रिसोर्ट बनाई है गालूडी घाट जिला में, हमको पता चला। इसका मतलब हमारे राज्य की संपत्ति 2-4 लोग उसको अपना बपोती समझ लिए हैं। और अभी बिल्कुल कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। चंपई सोरेन यही ना किए। आज चंपई सोरेन जी का तनख्वाह 2 लाख रुपया है। आज एक बात बताइए, यहाँ कितने लोग हैं जिनका तनख्वाह 2 लाख है? आपके घर में जो आप कमाते हैं, दीदी लोग भाई लोग क्या कमाते हैं? 10,000, 20,000, 15,000, फिर भी खुशी खुशी परिवार चल रहा है। और चंपई चाचा का 2 लाख में पेट नहीं भर रहा है। ना ये बेटा कोई विधायक बना देते हैं। क्या सोच है इनकी, आपको भी मालूम है। आप भी समझ सकते हैं उनका सोच क्या है और कितना विकास उन लोग करेगा। 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है, आराम से 25 को, अगर आपकी फैमिली में 20 को मेंबर है तो चलेगा। जब लोग 10,000 रुपया कमा के 5 को मेंबर को चला रहा है तो 2 लाख रुपया तनख्वाह पहले कमा के रखे तो हिसाबे नहीं ले रहे, अभी 2 लाख रुपया तनख्वाह है। तो ये हमारे नेताओं की सोच है। इसलिए आज नए राजनीति की आवश्यकता है, जनता को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। और रामदास मुर्मू कौन है आप भी जानते हैं। ये कोचिंग पढ़ाते हैं, बच्चा को पढ़ाते हैं, लाइब्रेरी चलाते हैं। इसलिए मायरा मासीरा काकीरा दीदीरा আমরা যে এখানে আসেছে এই জন্য আসেছে কি এবার নতুন পলিটিক্সের দরকার আছে। এটা চেঞ্জিং এর টাইম, পরিবর্তনের সময় আছে। और हमरा এটা तो ये बात तो आपसे कहेंगे, चुनाव हारे या जीते हम आपके मुद्दों के साथ है, आपकी समस्याओं के साथ है। आपके सुख में आ पाए या ना आ पाए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपको दुख होगा, समस्या होगी, हमारे नेता आपके बीच रहेंगे। चुनाव का क्या परिणाम होगा वो तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन हम लोग आपके बीच से आए हैं, आपके बीच रहेंगे। आज हम विधायक बन गए हैं, लेकिन आप देखिएगा हमारा घर जाके, आज भी हमारे घर में जब बारिश होती है तो जमीन के नीचे से भी झरकता है, ऊपर से तो आता ही आता है। आप तो देखे होंगे हमारी जो दादी दीदी बूढ़ी, आपने की बोले, हाँ उनको मोबाइल में देखते होंगे, जब भी घर जाते हैं ना पहला दिन यही बोलते घर बना लो, अब विधायक बन गया है कम से कम घर बना लो। तो जब जब हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारे आंखों के सामने आपका चेहरा आता है कि हम अकेले थोड़ी है। हम जिस काम के लिए आए वो काम अधूरा है, वो मकसद अधूरा है। हमें वो मकसद पूरा करना है, वो काम पूरा करना है। इसलिए आज आपसे आग्रह है, अनुरोध है, इस बार अवसर दिया जाए और आप देंगे, वो विश्वास है। वोट होंगे, वोट होगा, फिर होगा। लेकिन फिलहाल अब हम लोग जाते जाते यही कहेंगे, समय का अभाव है, अभी और 3-4 जगह जाना है और आचार संहिता में टाइम का परमिशन होता है। बाकी आप लोग बढ़िया से अच्छा से मिलजुल के रहिएगा और जितने छोटे भाई बहन आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिएगा। ये मुनिरा मुनू हो ना, पढ़ा लिखा करे ना, सुबह भालो करे, पढ़ा लिखा करे ना। और आप लोग मिलजुल के रहिएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा, भाई भाई नहीं लड़िएगा। आप लोग गोतनी गोतनी है, जजावली ना, जाजोली, अच्छा हम लोग गोतनी बोलते हैं। हाँ तो आप लोग जजोली लोग बहन जैसा रहिएगा। हाँ जैसे भाई भाई लोग होता है, बहन बहन जैसा रहिएगा, जजोली जैसा नहीं रहिएगा। ठीक है, सबाई के जोहार, सबाई के नमस्कार। सब ग्रामवासियों को धन्यवाद। 5 নম্বর कैंची छाप बेसिले बेसी 11 तारीखे बेसिले बेसी भोट दिए हमारे रामदास